हुआ या आपने ट्राई किया? कोई चीज़ समझ नहीं आई? So we went yesterday. We talked about what SEO is. We talked about what a server is, what a client is, right? Both of you are clear on this. ठीक? Similarly, we talked about what it means to optimize something. Um, then, um, so which one of you would like to tell me what holistic optimization was, if you remember? Sorry, can you come again? What did you understand about holistic optimization? What is a holistic Um, approach? What is called a holistic approach to something? वो सिर्फ optimization में नहीं. What do you think it means? जब किसी भी business term में कहा जाता है या कहीं भी कहा जाता है या philosophy में या medicine में, it is a holistic approach. What do you think it means? like उसकी जो पूरी 360 degree coverage हो Yes, holistic approach from is its in a, interface to the experience that customer experiences. Imagine, do you understand what holistic optimization means? Yeah, holistic means. I think her mic is on mute. Khair, yes. So Junaid, basically that is. I can hear you properly. Your voice is overlapping. You cannot hear me properly. Hello. Yeah, can you hear me now? Yes, yes. Okay. So what I was saying was holistic optimization is pretty much what you said. चीज़ों को interconnected होना. एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप टमाटर भी बेच रहे हो और आप कंप्यूटर्स भी बेच रहे हो, makes no sense. ठीक है? That is not a focused website. A holistic site will give a 360 approach to everything. It will make sure कि उसकी टेक्निकल पार्ट भी अच्छी हो, उसका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, उसके ऊपर जो कंटेंट पड़ा हो वो भी अच्छा हो. ये नहीं कि you simply just एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, उसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी हैं, बाकी सारा इट्स जस्ट नॉनसेंस फुल ऑफ एड्स. Similarly, another thing that matters is the focusing a site versus combining site ideas. यही जो हमने बात की. Um, Now let's quickly go over some key terms जो कि काफ़ी काफ़ी हम अब इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को SEO में यूज़ होंगे. I'll share the list also. We'll go very quickly over them. This shouldn't be hyperlink text. This should be anchor text. Anchor कश्ती का आप लोगों ने anchor देखा है क्या होता है? जुनेद आप ही रह गए हो. Hello. जी आवाज़ आ रही है? आवाज बट बीच बीच में ओवरलैप कर रही है. अच्छा मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने कश्ती आपने कश्ती का वो देखा है एंकर व्हाट एंकर इज. हाँ, ऑब्वियसली दैट होस्टिंग को जाता है स्टॉप एग्जैक्टली करने के लिए उसको ना एग्जैक्टली. इमीडिएटली. सो आपको इसी तरह से आप अगर अपना ब्राउज़र खोलो राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ यू ओपन एनी आई डोंट नो लेट्स सी इफ आई हैव अ ब्राउज़र ओपन हियर. मेरी मेरी दूसरी स्क्रीन पे आप लोगों को ब्राउज़र दिख रहा है? मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को ब्राउज़र दिख रहा है? डॉन की वेबसाइट दिख रही है? जी जी दिख रहा है. Darling text as user click
to follow link. Sorry? सर यहाँ पे लिखा हुआ hypertext link that नहीं, अब आप मेरी the दूसरी user स्क्रीन clicks to पे follow a link. मेरी जो दूसरी स्क्रीन है उस पे क्लिक करेंगी, जो एक और जिस पे आपको व्हाइट डॉन का न्यूज़पेपर का पेज दिख रहा होगा. जी Okay, so now let's click inspect element. जी अब आप देखें, every time we have something जिसके ऊपर लिंक है, जिसको hyperlink कहा जाता है, right, या hypertext कहा जाता है, is usually उसको A टैग, एंकर टैग कहा जाता है, क्योंकि वो हुक कर रहा होता है किसी और लिंक के साथ, राइट, इसीलिए उसको एंकर कहते हैं, जैसे कश्ती का एंकर होता है, राइट, वो हुक कर रहा होता है. सो जहाँ पर भी आपने चाहे वो अपनी ईमेल में हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो, आपने लिंक देना होता है, उसको एंकर टैग कहते हैं. सो आप बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज़ यू राइट दिस, you write A, and then you will say the reference, the hyper reference is www dot whatever uh, .com, right, and that's it, and you close the tag. These are called anchor tags. आपको जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में you will go and do the analysis, a lot of the errors you will see, जो वो कहेगा broken anchors. Broken anchors means कि लिंक है और लिंक खाली है, कहीं पर कोई उसको जो है ना वो नहीं दिया हुआ है, या जहाँ से लिंक दिया हुआ है वो लिंक टूटा हुआ है, कि वो साइट एग्जिस्ट नहीं करती या वो पेज रिस्पॉन्ड नहीं करता है. दैट ऑल्सो पुट्स डाउन योर सर्च इंजन रैंकिंग, राइट. Okay, now let's go back to the main screen. Okay, so you can see कि an example of an anchor text would be, जो मैंने अभी आपको दिखाई कि you will so अब आपको जो है बेसिकली जो यूज़र को जो सामने देख रहा होगा उसको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, जो ये इन टैग्स के बीच में, जहाँ ये टैग खुला, ये ए टैग, और ये बंद हो गया टैग, उसके बाद ये टैग खुला और ये बंद हो गया, राइट. आर यू गाइस एबल टू सी? आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मेरे? एक तो ये ऊपर वाला दिख रहा था ना एंकर टैग, SEO 101. हाँ ये नहीं, SEO 101 दिख रहा है आप लोगों को, ये नहीं दिख रहा है एग्जांपल ऑफ एंकर टेक्स्ट कीपिंग योर जी सर अब आया आ गया. Okay. So this is your example, right? Basically ये जो A part है, this is your anchor, इनको tags कहते हैं. Your entire websites are built on these tags, right? This is hypertext markup language, so HTML जो कहते हैं. So आपने बताया है कि मैं यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ और उस लिंक का एड्रेस ये है, hyper reference, href is this. यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिख दिया. यूज़र को सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा जैसे उसको डॉन में दिख रहा था, या कोई सी भी लिंक दिख रहा होता है आपको, राइट. लेकिन जब आप उस पर क्लिक करें तो बैक एंड पे इट कुड बी लिंक टू एनीथिंग एल्स. यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर लिखा हो सकता है जस्ट क्लिक हेयर एंड इट विल शो दैट वे, और इट विल क्रिएट एक ब्लू रंग का रेगुलर, उसमें अगर उसको स्टाइल नहीं किया हुआ तो वो, राइट. सो एंकर टैग्स आर इम्पोर्टेंट इन दैट सेंस कि आप जब गूगल के ऊपर एनालिसिस करेंगे किसी साइट की SEO का, it will probably give you any broken anchors, broken links. That means you have to fix that. So anchors will be, whenever we're talking about A tags, yeah, anchors, we will be talking about links. Clear? Hello? Okay, I'll take that as clear. अरे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें एंकर टैग. हाँ जी, please. Okay, so let's take this. वो वो डॉन वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया था, अगर वो Okay, उससे थोड़ा सा फिर से मुझे दिखा दें. Don't worry about Dawn wala part. Let's try something really simple. Let me show you the very very basics of a website.
Okay. Whatever text editor you guys have doesn't matter. Notepad खोल लीजिए या जो भी आप लोगों के Windows में होता है. So now let's just take this example. Are you able to see my screen? मेरे सामने से हट गया. Hello? Hello? Hello, जी. अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये दिख रही है. Okay, so this is it. Now this is basically what it is. I want to say hello, right? So the way I'm going to say hello in this language is simply hello. Okay, and now I'm gonna save it as an HTML file. I'm going to save it as an HTML file. That's it. Okay. And now let's see if we can ओके. अब आप लोगों को दिख रहा है कि हमने हेलो लिखा था, खुल गई हमारी एक बेसिक सी वेबसाइट. ठीक है, राइट? कैन एवरीवन सी? जुनैद अली? जी जी. ओके, तो आप लोगों को ये दिख रहा है ना कि जुनैद? जी दिख रहा है. Okay, so now if I want to, अब आप ये देख रहे हो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है. If I want to say कि ये I go to whispers to reflections, right? .com. Let's save this and refresh. You can see उसने लिंक तो दे दिया लेकिन it's not clickable, right? Because the computer doesn't know what you're trying to do. आप उसको जो बताओगे, like we talked about, it's a stupid processor. It's the stupidest thing in the world. आप एक कॉमे की भी गलती करोगे तो it will not read it through. अब आप ये देखो, जब ये इसको read कर रहा है तो all it gets to see is this कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ hello लिखा हुआ है. Alright. So now अब हमने इसको लिंक बनाना है एक वेबसाइट में. ये लिंक बने बैक एंड पे. So this is how we're gonna do it. We're going to say, एक नीचे एक और बनाते हैं. We're going to say let's give it a break. You don't have to learn this, but later on in the next course it will be helpful. ये छोटी छोटी सी टैग्स पता होना, लेकिन we'll study them then. तो BR simply means break. ठीक है, ये एक टैग है break का, and you can see let's say I add one here. अब जब मैं ये पेज रिफ्रेश करूँगा आप देखोगे कि इनके दरमियान जो है ना वो मैंने ब्रेक डिफाइन नहीं की हुई है. ओके, इट्स फाइन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी दिस. वी वांट टू गिव इट एन एंकर टैग, ए टैग. ठीक है, वी क्लोज द टैग, वी राइट व्हाटएवर वी वांट टू, वी से अब आप देख रहे हो हम स्पेस भी दे सकते हैं, एंड वी क्लोज द टैग. And that's it. Now let's refresh. And we have a link. ठीक है, लेकिन still, why is it not showing a link? क्योंकि we never gave it any link. So now in this A tag, this anchor tag, हम कहते हैं href, इसका link दे देते हैं, right? To any website you want. You can even give it to google.com.
कहीं पर भी दे दो आप, राइट? ओके, नाउ लेट्स ट्राई। अब आप देख रहे हो ये इमीडिएटली लिंक बन गया। इफ आई क्लिक ऑन इट, इट विल टेक मी टू दैट लिंक, राइट? लेकिन देयर विल बी अ प्रॉब्लम नाउ। सो अब यूज़र को तो सिर्फ ये दिख रहा है यूज़र, लेकिन अब आप देख रहे हो देयर इज़ अ रिक्वेस्ट 404 द URL इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि जिस तरह से हमने लिंक दिया हमने उसका एड्रेस डिफाइन नहीं किया। सो वो हमारे लोकल डायरेक्टरी में समझ रहा है जैसे हमने कल देखा था, और वो जो है ना सिर्फ उसने बैकस्लैश लिया हुआ है। तो एक सिंपल सी गलती, एक सिंपल सा लिंक आपने अपनी ब्लॉग में देते हुए, ब्लॉग की कोई पोस्ट में देते हुए, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग HTTP या HTTPS, राइट, आपने ये नहीं दिया। इट विल कंसिडर कि ये आपकी लोकल डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है और वो लोड नहीं कर रहा। इट विल गिव यू अ 404, राइट? नाउ इफ आई रिफ्रेश, सर ये sorry, डू फॉलो लिंक है जो अक्सर मैंने पढ़ा भी है, डू फॉलो लिंक्स होते हैं, इसको इस तरह से लोगों के कमेंट में रख दिया जाता है। yes, ये वो चीज़ आप बता रहे हैं? yes, yes। तो अब आमतौर पे फेसबुक वगैरह पे जो है ना क्या होता है कि जब आप उनके उनके उसमें लिख रहे होते हैं तो वो बैक एंड पे खुद ब खुद जब आप लिखते हैं ना, जैसे ही HTTP या फिर आप लिखते हैं www.something.com, it immediately reads it and converts it into this। पीछे से वो पीछे बैक अच्छा एंड पे। सर, एक और चीज़ है, अगर हम डायरेक्ट हमारी अगर सिर्फ वेबसाइट का URL डालते हैं तो क्या उससे डू फॉलो लिंक नहीं बनता? ज़रूरी है आपने इसी लैंग्वेज के थ्रू ही ये पूरा एक ही कोड डालें तो ही ये डू नहीं, फॉलो डिपेंड लिंक करता है बनता ना है? आप ये किधर, क्या डिफरेंस है? डिपेंड करता है किधर डाल रही हैं आपकी सोर्स पे डिपेंड करता है। रीड आपका ब्राउज़र हमेशा इसी लैंग्वेज में करेगा। ब्राउज़र को तो नहीं पता ना कि लिंक क्या है। ब्राउज़र ने जब अगर ये पढ़ना है विस्पर्स टू रिफ्लेक्शंस, उसने वैसे ही प्रिंट आउट कर देना है जैसे यहाँ पर किया, राइट? तो ब्राउज़र को तो आपने लाइन बाय लाइन, अ कंप्यूटर ब्राउज़र रीड्स एवरी लाइन के क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन पे उसने पढ़ा हेलो, उसने प्रिंट आउट कर दिया। दूसरी लाइन पे उसने पढ़ा ब्रेक है, उसने ब्रेक दे दिया। तीसरी लाइन पे उसने पढ़ा ये whispers to reflections.com, उसने एग्जैक्टली वैसे छाप दिया। ये फिफ्थ लाइन के ऊपर उसको पता चला कि यहाँ पर एक एंकर है, एक लिंक दे रहा हूँ मैं। ए प्री डिफाइंड हमने पहले से ब्राउज़र को जो है ना, कुछ लोगों ने एक सैनिटाइज जो इंटरनेट को मेंटेन करते हैं उन्होंने ए टैग जो है ना पहले से डिफ़ाइन कर दिया। तो आपने डिफ़ाइन करके उसमें लिंक दे दिया। ब्राउज़र्स जितने भी हैं, क्रोम ब्राउज़र हो, आपके मोबाइल का ब्राउज़र हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कुछ भी हो, दे ऑल रीड दिस लैंग्वेज। दे कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू दिस लैंग्वेज। तो अब आप फेसबुक पर भी अगर डाल रही हैं और आपने फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखा कि www.google.com, और वो जो उसको ब्लू रंग के उसमें कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसके उन्होंने प्रोग्राम में पहले से ये डाला हुआ है कि जब भी कोई .com लिखे तो उसको जो है ना इस तरह से कन्वर्ट कर देना। यूज़र को आप देखें वो यही दिखाएगा, ब्लू रंग का सिर्फ whispers to reflections। बैक एंड में अगर आप राइट क्लिक करेंगी और आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगी तो वो हमेशा इट विल बी एन ए टैग। सही है ना? मैंने फेसबुक पे तो डायरेक्ट कोई भी आर्टिकल होता है तो हम उससे डायरेक्ट डालते हैं तो वो एक पिक्चर उसके साथ आ जाती है, कभी इस तरह से नहीं शेयर किया। लेकिन कभी हम तो इसको यूज़ किया था जी, क्योंकि फेसबुक पे दैट जिसको कहते हैं कि प्रोग्राम आपका जो विंडोज़ है, सो व्हाटएवर, सो here's I can go and find my directories this way, right? I can click on this on the finder and I can find directories directly यहाँ से जाकर, ठीक है? This is a graphical user interface। लेकिन कोर कंप्यूटर पे जो हमने कल भी देखा था, कंप्यूटर बेसिकली is reading line by line। sorry, okay, a computer is reading line by line everything। okay, ये सारी directories it shows this way, right? so और इसी तरह से वो आप ये देख रही हैं कि इसी तरह से वो जो है ना ये वही डायरेक्टरी है जो जहाँ पर अभी हमने खोल के वो फाइल डाली हुई थी जिस तरह से। सो दिस इज़ हाउ इट रीड्स इट।
जो आप फेसबुक पर कर रही हैं, फेसबुक हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, जिस तरह से विंडोज़ ने या माइक्रोसॉफ्ट ने वो बना दिया है अ यूज़र इंटरफेस फॉर यू टू, कि वही सारी चीज़ें आप क्लिक करके करें, राइट, जो कि आप लिख के करती हैं। कंप्यूटर बैकएंड में वही कर रहा है, क्योंकि व्हेन यू क्लिक ऑन दैट बटन, basically that button has been coded to give that instruction computer को exactly उस line में. I'll give you a very quick example. Can everyone see the text on my screen? Yes. Yes. जी Okay, let's say I want to go into the applications folder, and then I want to go there into the MAMP folder, and then I want to go and visit that file. तो ये इतना लंबा चौड़ा मुझे लिखना पड़ा और इधर ढूंढना पड़ा. How about, so there's a quick way, right? How about if I simply do this? Yeah, this is me. I'll tell you what it is in 1 second. Okay. Let's say I simply go here and I create an alias. I call it quick. Ali, this is something that might be very useful for you in your job. You may want to focus on this. ठीक है. और अब मैं वही चीज़ को मैं कहता हूँ कि जब भी मैं क्विक लिखूँ तो चेंज द डायरेक्टरी, वो जो सारा पैथ था वो एक बार सेव कर लो टू एप्लीकेशंस एंड देन मैम एंड देन htdocs. Okay. Let's exit and then restart. Okay, now let's see if that works. अब आप देख रही हैं कि ऑलरेडी सिर्फ क्विक लिखने से ये वो पूरी की पूरी जो मेजर इतनी लंबी चौड़ी डायरेक्टरी थी उसमें ले गया. Can everyone see that? So जी जी what we did was we created an address, right? Now let's go back into that and now change that address to something very different, like this. Let's say instead of quick, I want to say quick.com. There you go. Quick.com लिखने से you can see कि वो जो इतनी लंबी चौड़ी मैं डायरेक्टरी लिखता, चेंज डायरेक्टरी, गो टू एप्लीकेशंस, उसके बाद मैं कहता गो टू मैम एंड देन गो टू htdocs, सिर्फ और सिर्फ quick.com लिखने से I was able to access that directory. Now does that make sense to you guys what URLs are? And also कि जो आप कह रही हैं कि वो जो खुद ही कन्वर्ट कर देता है ना, सो बेसिकली जिस तरह से मैंने एक क्विक शॉर्टकट बना लिया अपने लिए, एक quick.com के तौर पे लिख दिया है कितनी लंबी चौड़ी डायरेक्टरी का, और इससे भी लंबी लंबी फिर डायरेक्टरीज होती चली जाती हैं, राइट? जितनी और ज़्यादा फाइल्स होंगी और ज़्यादा फोल्डर्स होंगे अंदर. एंड इंटरनेट मीन्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फाइल्स. तो डेटा, सो
इसी तरह से अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ ग्राफिकल डिज़ाइन, एक छोटा सा बटन, राइट, click here, or I can code it anytime a cursor clicks on that button. What will it do? It will write out the command quick.com, और quick.com क्या करती है? quick.com cd change directory to applications map htdocs, एक पूरी की पूरी वो कमांड जो है ना उसको वो कर देती है. So basically every time आप जब ये इस पे क्लिक करेंगी आप दोनों तीनों let's say end call के ऊपर, right, or let's say the close button, when you do that, what is happening, the computer is basically इसी तरह से एक कमांड लिखी हुई है जो मैंने लिख रहा था reset की या quit की, और कंप्यूटर वो quit की कमांड रन कर रहा है ऑटोमेटिकली. So Facebook or YouTube or other WhatsApp messengers, what they've done is exactly the same thing कि जब कोई उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई से भी .com का .net का www. something का कुछ लिखे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि इसको जो है ना एंकर टैग बना दो. Does that clarify? नजबीनी आपका सवाल था. Does that clarify your question? जी जी. Okay. So does anyone have any other questions regarding this, or should I continue to move on? किसी का कोई सवाल है? No, sir. Okay. So next, one of the things जो SEO और SMM के अंदर आपको सुनने को मिलेगी, और ख़ास करके जो terms of services policies और इनको ये देखना, is arbitrage. Arbitrage economics का word है, which basically means the simultaneous buying किसी भी securities का, पैसों का, commodities का, चीज़ों का एक वक्त में यकता ख़रीदना और फिर बेचना, जैसे आप समझ लो रियल स्टेट. और SEO और SMM एग्जैक्टली रियल स्टेट है, क्योंकि अब आपने ये देख लिया कि वेबसाइट का जो वेबसाइट थी, अभी आपने देखा किस तरह से एक बेसिक वेबसाइट हेलो जो हमने लिखी वो पड़ी हुई थी, हमने खोली उसको ब्राउज़र में हमारे. दीज आर फाइल्स, राइट, एंड दीज आर फाइल्स सिटिंग समवेयर. आपकी कोई हार्ड डिस्क के अंदर ये स्पेस ले रहे होते हैं, बिल्कुल रियल स्टेट की तरह. इसीलिए इस फील्ड के अंदर ये टर्म भी SEO में यू विल कंटिन्यूसली यूज़ एंड हेयर रियल स्टेट फॉर वेबसाइट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और उनके कितना वो लग रहा होता है. सो आर्बिट्रेज एक वक्त में ख़रीदो फरोख्त प्रॉपर्टीज़ की, एसेट्स की फॉर मुख्तलिफ प्राइसेस पे मुनाफे के लिए, दैट इज़ प्रीटी मच आर्बिट्रेज, राइट. सर्च इंजन्स क्या अलाउ करते हैं, आप इश्तिहारों के लिए ख़रीदते हैं, आप बेसिकली ख़रीद रहे हैं और बेच रहे होते हैं. Yes, you have to play by the rules, you have to play it nicely. We will study them again later. Lekin, so arbitrage is something I want you to understand, okay, what it means. Is everyone clear on the basic meaning of arbitrage? Yes, sir. जी सर. Okay. Okay. So it also, one of the things is कि जो है ना आप जब आपकी वेबसाइट है, आप उसके लिए जो है ना कहीं पर किसी और वेबसाइट पे या किसी और पेइंग वेबसाइट पे जो एडवर्टीजमेंट चलाती हैं, उनको आप पे करते हैं कि अपना लो ट्रैफिक मेरी साइट के ऊपर भेजो, राइट, मेरे लैंडिंग पेज पे. उस लैंडिंग पेज के ऊपर आपने एक अपना इश्तिहार डाल दिया है, ठीक है. आप वो ऐड ख़रीद रहे हैं जहाँ से आप अपना ट्रैफिक बुला रहे हैं किसी और की वेबसाइट पे. सो लेट्स से मेरी वेबसाइट, मुझे आप आके कहते हैं जुनैद यू देयर, राइट, जुनैद डिस्कनेक्ट हो गया है, चलो अली. सो लेट्स से आप जो है ना आते हो और आप मुझे कहते हो कि आपकी वेबसाइट पे मेरा इश्तिहार डाल दें ताकि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आए. मैं आपको जो है ना 10 सेंट दूँगा फॉर एवरी यूज़र दैट कम्स टू माई साइट और क्लिक समथिंग लाइक दैट. आप अपनी साइट के ऊपर सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाते हो और एक इश्तिहार डाल देते हो, और उस इश्तिहार की जगह जो है वो आप
मेहजबीन को कहते हो कि मेहजबीन इफ़ यू वांट टू पुट एन एड ऑन माय वेबसाइट मैं 20 सेंट में दूंगा. दैट you can think of as arbitrage. So does that clarify what arbitrage is? जी जी. So now we've got page authority. Page authority एक पेज की strengths ranking में कितनी बन रही होती हैं, it's about that. Page bias, bias is very much क्या कहते हैं, तासुब जिसको कहते हैं उर्दू में. I think that's Junaid. Junaid, are we clear on what SEO arbitrage is, or did you miss that? अब आप recording में फिर याद देख लेंगे क्योंकि we're very much behind. Junaid का mic mute पर. Anyways, so it's prejudice is basically tassub. I think I don't really need to go into that. Now there's another thing called white hat SEO and black hat SEO. White hat, obviously the name white hat usually goes for fair या अच्छी clean उनके लिए, and then there's black hat SEO. Search engines जो है ना वो guidelines कुछ set करती हैं revenues के लिए कि ads के revenue की क्या तरीक़ेकार होंगे, उनको publish किस तरह से करना है, उनको search किस तरह से करना है. उनको ब्रेक करने वाले या उनको उन रूल्स को तोड़ना इज़ बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ. कंटिन्यूसली एक लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक पेज बनाया, एक साइट बनाई है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है सिवाय इश्तिहारों के, दैट इज़ आल्सो ब्रेकिंग द रूल्स. Currently that is illegitimate, so you will get a bad ranking for your website. You can have a lot of ads as long as there is also a lot of relevant content written on your website relevant to those ads. Otherwise you lose your page authority जो हमने बात की. Now similarly we've got Boolean search. So I'll give you an example in 1 second when we talk about database querying. So Boolean search is search engines allow you to perform different kinds of searches, right? Google के ऊपर, for example, if I want to, I'm not sure if I showed it to you guys. So before we do that, let's open terminal again. And what we want to do is, I want to show you something very, very simple. This is now again another language. It's called SQL. It's not only for the web, it's used everywhere in banking and hospitals. Microsoft Access उसके ऊपर होता है. And it's a very, very old language. सर्वर साइड पे, सो हमने क्लाइंट साइड पे बात की थी, HTML चल रही है जो आपका ब्राउज़र रीड कर रहा है टैग्स में. इसी तरह से अब सर्च इंजन, टू बेटर अंडरस्टैंड कि सर्च किस तरह से काम कर रही होती है, we're going to talk a little bit about search queries, right? So let's see. Okay, so now let's do something. Now I want to do this. Let's say I want to पहले तो अब basically this is called MySQL. MySQL is one form of SQL. SQL is structured querying language or queried language, right? This you will understand in 1 second. So these are all the database we have sitting. Let's say I want to create a new database, right? For anything. Database, we talked about yesterday what they are. Just a collection of data in an organized manner. So let's create a new database, or let's call that database tutorial. Okay, now in that database, let's do something. What do we want to do? Let's say, so basically ये structured means we have rows and columns like we spoke about yesterday. So let's create a table in there. So what do we want to do? We want to create a table,
and let's call that table, let's say we want to do months, एक table बनाते हैं months का, right? And let's simply say उसकी हम ID दे देंगे कि नंबर 0 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है। ID होगी इंटीजर्स में, हम उसको एक नाम देंगे, नाम होगा वेरिएबल कैरेक्टर्स में। 10 से ज़्यादा की लिमिट नहीं होगी। वेरिएबल कैरेक्टर्स मींस ABCD से लेकर 1 2 3 4 कोई से भी जो है ना अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो उसका जो नाम होगा वो उसमें होगा। इसी तरह से फिर एक कॉलम होगा डेज का, वो भी नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। And now I have an error because it didn't create it. Let's do it. Okay. This is, so let's say I this, let's create that. Okay, let's create a new database. Let's call it something. Database created. Let's create a table in that database. Okay, so we're called months. So अब हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, राइट? लेट्स से उसके अंदर हम कहते हैं we've got January, sorry, so that's the name. उसको हमने सेलेक्ट कर दिया वेरिएबल कैरेक्टर एंड ऑल दोज थिंग्स जो मैं वो लिख रहा था, अब आप देख रही हैं वो एक लाइन में लिख रहा था। दिस इज graphically adding all of those things, right? Similarly, so if I save it, सर ये आपने ये टेबल कहाँ बनाया है? this is on my server. आप लोग, so for example you can make a very similar table on Microsoft Excel. Excel के अंदर अगर उसको Access से connect कर दें, so you will learn this later, but the idea is to show you on querying. मैं आपको सिर्फ ये, so basically what I'm just trying to show, sorry, किसके लिए यूज होगा? किसके लिए यूज होगा सर? ये क्या प्रोग्रामिंग है? नहीं, ये प्रोग्रामिंग करके ये दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं है। सो बेसिकली हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, हमारे पास एक डेटाबेस है, यानी एक सेट ऑफ फाइल्स हैं, एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ फाइल्स हैं, उसके अंदर एक टेबल है। टेबल के मायने ये है कि हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं। उस टेबल के अंदर हमारे पास लिटरली रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम्स हैं। हमारी पहली रो है जनवरी, राइट? सो लेट्स से इसी तरह से हम इसमें मज़ीद डालते हैं, वी इंसर्ट, it's always easier writing it.
insert as row and then go back to previous row. ठीक है ये अब आप देख रही हैं insert into months January फलाना फलाना फलाना. Let's say we do more. We can say insert into months. सर ये वो वाला पार्ट है जो आप इंस्पेक्ट करके दूसरी वेबसाइट्स का दिखा रहे हैं, क्या वो आप वो पार्ट बना रहे हैं? Yes. So अब आप एक तो ये कि दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्या फाइल पड़ी हुई है, उस पर क्या डेटा पड़ा हुआ है, उसको अब हम सर्च किस तरह से करेंगे. सो अब ये हमारा बेसिक सा हो गया. Right. And let's call it 04 simply. Okay. Graphical creator. Select. So there we go. ओके अब हमारे पास एक टेबल बन गई है जिसके अंदर हमारे पास महीनों के नाम है. राइट. व्हाट वी वांट टू डू एंड दैट्स अ वेरी सिंपल. सो बेसिकली हमारे पास एक कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 रोज हैं. एक छोटी सी टेबल, एक छोटी सी फाइल बनी है. एंड दिस इज प्रीटी मच ऑल व्हाट द इंटरनेट इज. नाउ इफ यू वांट टू सर्च दैट, basically all you do is you say select I want to see select all from months, right? And I run it and see what happens. So there's nothing unique, लेकिन उसने जितने हैं मुझे लिस्ट में दिखाने शुरू कर दिए. right? Can you guys see that? जी सर. ओके अब आप इस टेबल को, इस तरह की लिस्ट को, इस तरह के एक टेबल के बजाय अब आप 2 टेबल कर दें. राइट. ये मंथ्स था. let's say you create another table here and then you create 10 other tables, then you create 10 other databases. ठीक है. और ये सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के ऊपर है. उनको सर्च करने की ये क्वेरीज जो हैं बढ़ती चली जाएंगी. सो द वे यू कंटिन्यू डूइंग दीज इज, अब आप देख रहे हैं कि आप ये बेसिक सी चीज़ें डालती चले जा रहे हैं. दिस इज़ व्हाट गूगल इज़. कहीं पर ये एक लिस्ट पड़ी हुई है टेबल की, किसी एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे एक दुनिया भर की वेबसाइट्स के एड्रेसेस की लिस्ट पड़ी हुई है. उनमें क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनके कंटेंट की लिस्ट पड़ी हुई है. इसी तरह से जैसे ये हमने लिखा जनवरी फरवरी का टेबल. एंड नाउ व्हेन वी वांट टू सर्च इट, हम लिखते हैं कि सर्च समथिंग. राइट. वो हमें बेसिक सी सर्च दे देता है. अब आप उसमें ये फैक्टर देखें. These are the main key terms. Query Q के आगे, can you guys see? Actually वो नहीं दिखा रहा है बड़े, लेकिन ये टॉप पे Q के आगे Q equals search plus something. Can you guys see that? जी सर. Junaid Ali? Yes, sir. Okay, so this is what basically आपने लिखा search और फिर space or something. Computers do not understand spaces. So a space it reads as a plus sign. So इस तरह से this is the query जो हमने SQL में की. This is the SQL query Google is doing. Now, if you understand some basic SQL queries, you will start such as and
or. These are very key terms and they are used. इसी तरह से search something में, let's say I want to search something, this word very specifically. All I have to do is put it in a quotation mark. ठीक है? And but I don't want to have that something to also include a picture or words, the word words. So I can say search something less minus words. Now it will give me all the searches that will definitely have to contain the word something. अब हर search के अंदर something वाला word तो ज़रूर होगा. So जितनी search results आएंगे उसमें something will be necessary. और it will try to make sure कि ये वाला जो word है ये उस search results में कहीं पर भी ना आए. Right? सर आपने ये कीवर्ड सर्च करने का बता रहे हैं और आपने ये सर्च लिखा है SEARCH लिखा है, ये लिखना नीड होती है? No, so आपने no, जो नहीं, मैंने तो कुछ भी ऐसे ही लिख दिया था. मैंने तो ऐसे ही, so let's just say we're searching for Junaid, right? We're searching for Junaid. Now there is, it's probably going to show me a lot of Junaids. Some may have the same spelling, some may not have the same spelling. Okay, you can see that. It's also showing me strategy, operations. It's also showing me Deloitte, मुख्तलिफ जगहों पर. Let's say I don't want to talk about क्या कहते हैं sales का भी वो कह रहा है. Let's say I don't want to talk. I want to make sure कि जुनैद नाम इस spelling से ज़रूर हो. सबसे पहली चीज़. तो मैं उसको quotation mark में let's say डाल देता हूँ. Sorry. मैं उसको quotation mark में डाल देता हूँ. Right? Similarly, मैं कहता हूँ कि लेकिन I want to make sure और या कम से कम ये हो कि वो पाकिस्तान से हो, तो मैं प्लस करके पाकिस्तान डाल देता हूँ. And I want to make sure कि वो सेल्स का ना हो या सेल्स के अंदर ना हो, तो मैं माइनस कर देता हूँ. These are now queries that you will see above कि it Google, this is the part after the Q, जिसको कहते हैं ना Q equals is means the query. This is the actual SQL query जैसे हमने अपने एक डेटाबेस में छोटी सी लिस्ट के लिए की थी, एक बहुत बड़ी लिस्ट के लिए गूगल कर रहा है. Exactly that way. जुनैद प्लस फिर कोटेशन में उसने शरीफ डाला क्योंकि दिस इज़ ये इसके मायने ये वर्ड को वो छोड़ेगा नहीं किसी भी हाल में. इसी तरह से उसने जो है ना उसने बोला ऐड कर देना अगर मिल जाए पाकिस्तान और रिमूव कर देना सेल्स का वर्ड जिसमें से भी हो. तो जो भी सर्च रिजल्ट में सेल्स हो वो नहीं दिखानी है, वो प्रायोरिटी में नहीं है. सो डज इट मेक सेंस नाउ कि what is basically happening when you search on Google or on Facebook or on anything. Facebook पे जब आप you do a people search, that's exactly what you are doing. उनका एक database एक list टेबल पड़ी हुई है, उस टेबल के अंदर यूज़र नेम बिल्कुल ऐसी एक टेबल पड़ी हुई है, उस टेबल के अंदर यूज़र नेम्स पड़े हुए हैं और when you search for someone आप वो यूज़र को सर्च कर रहे होते हैं. Then when you उस पर एक फ़िल्टर लगाते हैं you say कि नहीं जी वो पाकिस्तान में सर्च करें, so you did this exact same thing. वो सारा उन्होंने कोड कर दिया, पीछे से छुपा दिया एक बटन के पीछे, but this is what it really is doing. And it helps in every field to know how to use Google properly. These quotation marks, these plus, these minus signs, these things, what they stand for and how to search properly, they will refine your search very very quickly. अब आप देख रहे हैं कि वो लाखों सर्च देने के बजाय उसने मुझे लिटरली 4 से 5 रिजल्ट्स दिए और बाकी उसने सारा रिमूव कर दिया क्योंकि it did not fit my search criteria. This helps me search properly and ख़ास करके जो है ना उसको लिमिट कर दूँ मैं छोटे से उस पर. Okay, so now I'm gonna end this in 5 minutes, so I have to be quick because we are already behind time like every day. Okay, so now Boolean search. Boolean simply stands for two-digit mathematics. So 0 and 1. 0 is false and 1 is true. किसी भी चीज़ का होना या किसी भी चीज़ का नहीं. So is the computer working? 0 or 1? 1 stands for yes and 0 stands for false. And that's pretty much all our computers are about. We will talk about them later. लेकिन basically Google के ऊपर भी 0 and 1 या फिर Facebook के ऊपर भी 0 and 1 is a very repeat. You will see it will mean okay something is working, something is on, or something is off. 0 means off,
one means on, working or not. An example would be a Boolean search would now be something with and or. Boolean operations, इनको Boolean operators कहते हैं. We'll discuss them. I'll send you the list also. We did kind of discuss these Boolean operators. ये similar होना या minus का sign या plus का sign, writing the word and in capital, or या फिर not. ये सारे के सारे words Google read करता है, and these are Boolean logic words. It will utilize them जिस तरह से हमने अपनी एक local database की search में देखा था. Broken links we talked about. Broken links के hyperlinks जब उनका सही नहीं चल रहे होते हैं, anchors जो होते हैं, this could reduce your ranking. A few of the major reasons जिसकी वजह से नहीं चल रहे होते हैं, आपकी हो सकता है वेबसाइट ऑफलाइन हुई भी है, सर्वर बंद है, किसी ने वो लिंक किसी ऐसे कंटेंट से है जो टेम्प्रेरी था, कोई सर्टिफिकेट था वो हो गया, कोई वो लिंक था ईमेल रीसेट पासवर्ड का, वो ख़त्म हो गया, पेज का लोकेशन मूव हो गई, पहले वो लेट्स से junaid.com पे थी, अब वो junaid.net पे चली गई है. इसी तरह से डोमेन का जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है वर्डप्रेस, या जिसके ऊपर वेबसाइट बार बार जिससे वेबसाइट पेजेस सर्व हो रहे होते हैं, we'll talk about CMS in the next course, वो उसका भी चेंज होना. सो बड़ी वेबसाइट्स पे आमतौर पे ब्रोकन लिंक्स काफ़ी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होना जो है ना, उसकी इंडिकेशन होती है कि कोई चीज़ पुरानी हो गई है. कैश इज़ बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन. एक वेबसाइट, जब आप उस वेबसाइट को विज़िट करते हो पहली मरतबा, तो वो आप ही के ब्राउज़र में सेव कर देती है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के बारे में, ताकि अगली बार लोड होने में आसानी हो. और लेकिन वो जो है ना, सो बेसिकली वो जो लोड करती है वो आपके इंटरनेट के ऊपर नहीं आ रहा होता, वो सर्च इंजन उसको वो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो प्रोवाइड कर सकती है सर्च इंजन को लिंक्स जो है. CGI और इसी तरह से API, ये आखिरी के ये दो अल्फाज आप लोग काफ़ी यूज़ होंगे. CGI स्टैंड्स फॉर कॉमन गेटवे इंटरफेस. दो मशीन्स आपस में जिस तरह से बात करती हैं, उस मेथड को CGI कहते हैं. दे आर इंटरैक्टिव. API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, which we'll talk about later, लेकिन that stands for जिस तरह से आपकी वेबसाइट पे आप चाहते हैं कि मेरे यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे अकाउंट ही ना बनाएं, अगर वो फेसबुक के ज्वाइन किया हुआ है तो वो उससे भी लॉगिन कर सकते हैं. तो फेसबुक आपको एक सीक्रेट की देगी, which you will connect to your program. That interface is called an API. Finally, you've got cookies. Cookies are the small data written on your browser's machine to track you. आपकी likes, dislikes, उस साइट पे कितनी देर रहे आप उस साइट से, किस साइट के ऊपर फिर गए, विजिट किया, आपकी लोकेशन कहाँ है. All of these things are saved in your cookies. Conversions can be anything. जब भी आपका एक गोल अचीव हो जाता है, a conversion is reached. So in social media marketing or SEO, let's say एक product की sale हो जाना, you can say a conversion happened. Completing a lead form, lead generation forms जो होते हैं लोगों की information लेने के लिए, अगर कोई वो उसको fill कर देता है, तो then your conversion happened. अगर कोई अपना आपका नंबर दे देता है और आप उसको फ़ोन करते हैं, that is also considered a conversion. So depends on आपकी target market क्या है और आप किस तरह से वो कर रहे हैं. Capturing an email account is also part of conversion cycles. Filling out a survey, एक survey form बनाना और उसके लिए एक छोटी सी quickly एक page की site बना देना. We're going to talk about those also, how to do them. That is also part of conversions. Getting a person to pay attention to you, similarly getting feedback, having a visitor share your website with a friend, and having a visitor site link at your site. किसी और की website आपके साथ link कर दे, वो जो है ना वो हो जाता है. That is also part of conversions. Now bid management, affiliate tracking और मुख्तलिफ analytics की applications जो होती हैं, वो ये उनका काम exactly यही है कि वो conversions की जो sources हैं कि कहाँ से convert हो रहा है और कहाँ से नहीं हो रहा है, उनको efficiently manage करती है. We yesterday talked about a brief overview of the www. We've spoken about a database, and now we've, I think, also spoken about how database querying works.
We've also spoken about some common status responses yesterday. 200 means okay, 301 moved permanently, 302 found, 404 not found. Okay, this part we can do tomorrow, search engine result pages. And then immediately after that, we have to move to making accounts on Google Ads, Google Analytics, and all of that stuff. So, any questions regarding today's class? मेरे दोस्तों, No, sir. अली, जुनेद, नहीं असद भाई No, it's okay. जुनेद, is everything clear? But हाँ जी, part में connect sorry, उसमें connect आपकी आवाज़ कट गई. I'm saying कि बीच में मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया था तो वो उसको मैं थोड़ा रिवाइज करना चाह रहा था. कौन सा पार्ट आपने मिस किया था? ये encourage के बाद वो आता है किसका कोई मैं Arbitrage. लॉगिन किया था तो Arbitrage. हाँ शायद arbitrage है. Arbitrage economics में, finance में, accounts में, accounting में टर्म होती है ना. जब आप एक वक्त में स्टॉक मार्केट की तरह जो है ना सिक्योरिटीज़, करेंसीज या कमोडिटीज़ कुछ भी खरीदो फरोख्त करते हैं मुनाफे के लिए, राइट? आप एक से ख़रीदते हैं, आपने मुझसे स्टॉक ख़रीदा 10 सेंट में और जाके अली को बेच दिया 15 सेंट के अंदर, दैट्स आर्बिट्रेज, राइट? सर्च इंजन frown upon arbitrage, लेकिन it is allowed if you do it correctly. आपने आपने अली को अली की वेबसाइट, अली को बोला अली मेरी वेबसाइट की तरफ जो है ना मेरा इश्तिहार डाल दो, I'll pay you 10 cents. He says okay. उसका ट्रैफिक आपने अपनी तरफ बुलवाया 10 सेंट्स लेकर. आपने मेजरविन को बोला कि मेरी वेबसाइट के ऊपर 20 सेंट में जो है ना अपना इश्तिहार डाल दो, और आपने अपने एक लैंडिंग पेज पे सिर्फ और सिर्फ इश्तिहार अगर बनाकर डाल दिया ना, दैट्स ब्लैक हैट एसईओ, कि आपने वो पेज ही बनाया है चीटिंग करने, यानी सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इश्तिहार डालने के लिए. इट नीड्स कंटेंट. लेकिन आर्बिट्रेज टेक्निकली सिंपली मीन्स कि आपने अली से इश्तिहार ख़रीदा, अपना डाला 10 सेंट में, रियल एस्टेट लिया और अपनी तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट करके वही चीज़ 20 सेंट में कर दी. सही. Then page authority is basically literally the authority of the page, के पेज कितना strong है, पेज के links कितने, यानी उसकी ranking कहाँ पहुँचती है, all of those things. Finally bias, तो हर मार्केट में मार्केट बायस क्या होता है, SEO बायस, तासुब जो होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की पसंद क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, that is a very key factor. Black Hat SEO पे I think you were already there, which is क्या कहते हैं, you can say negative practices of search engine. अपने ये स्पैम करना और इस तरह की चीज़ें करना अपनी तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए. सही. Right. So if there's nothing else, I'm late for another class. मैं jump करूँगा. ठीक है, sure. All right. Thank you guys very much. अच्छा, किसी को अब प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअल क्लास के लिए प्लीज़ मुझे इसी पे या फिर जो है ना हैंगआउट्स पे या ईमेल करके या व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज कर दें. वी कैन बुक हाफ आवर सेशंस ऑनलाइन. Done. Okay. All right. Okay, sir. You guys have a good night. Okay. Khuda Hafiz. Oh, take care. Luck with